जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा सलोक कबीर जियो जहाँ दया वहाँ धर्म है। जहाँ झूठ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है। जहाँ क्षमा वहाँ आप। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। एक क्रांतिकारी शब्द कबीर साहब जी दे ने और कबीर साहब एक ऐसे महान कबीर का जो शब्द है ये अरबिक शब्द है। अरबी माँ बाप ने जो रखिया होएगा कबीर ते उन्हां नूं भी रब ने मेरे ख्याल च रब ने किरपा कीती होवेगी, क्योंकि कबीर शब्द अपने आप विच ही ये कह रहा कि बहुत महान पुरुष, बहुत वड्डा। ते कबीर साहब वैसे भी बड़े वड्डे ने कि दो ही दुनिया दे विच ताकतां ने जिन्हां दा पुख्ता प्रमाण है कि जिन्हां दा शरीर नहीं मिलिया मौत तो बाद। एक गुरु नानक, दूजे कबीर साहब, दोनों दे शरीर प्राप्त नहीं हुए। वैसे तो रामचंद्र जी का भी शरीर प्राप्त नहीं होया। रामचंद्र जी ने सरयू नदी विच ते गुरु अर्जन देव जी महाराज का भी शरीर नहीं प्राप्त होया, वो भी जिहड़ा सी रावी नदी च सी। पर ठीक है, पंजाबी ठीक है, सत्संग हिंदी हिंदी तो नहीं कोई। तो वो नहीं बनी, गल नहीं बनी। ते शरीर रब दे कोल किसे दा नहीं जांदा। सिर्फ दो तीन बंदे होणगे। ईसा मसीह नूं भी यह मन्निया जाता कि ईसा मसीह का भी शरीर नहीं मिलिया, वो गुफा विच रखिया ते गुफा चों गायब हो गया। मनदे ने, पर सही गल जिहड़ी है वो चलो आपां इन्ने डैप्थ विच नहीं जाना, पर जिहड़ा खास शरीर ना मिलना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का भी शरीर नहीं मिलिया। पर ये दो शरीर का तो पुख्ता प्रमाण है। वो की सी कि कोई मतलब विच कोई भी किसी तरीके दे नाल भी कोई आपां ये नहीं सोच सकते कि की गल हुई। जदों कबीर साहब का जो शरीर छड्डिया कबीर साहब ने, उन्हां दी उम्र 125 साल दी सी। 125 साल दे अंदर उन्होंने शरीर छड्डिया, छड्ड के शरीर ते गए अपना, उन्होंने वो जगह भी छड्ड दित्ती बनारस कि असी बनारस विच मैं नहीं मरना, मैनू मगर लै चलो। मगर दे विच एक कहानी सी कि मगर दे अंदर जिहड़े लोग मरदे ने उन्हां नूं नरक मिलता है। इसे ही गल नूं
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਰਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਕੁੰਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਔਰ ਦਿਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤ ਕੋ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਰਦੇ ਜਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਮਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ, ਤੇ ਚਾਦਰ ਜੋ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਚਾਦਰ ਸੀ ਤੇ 2 ਕੁ ਫੁੱਲ ਪਏ ਸਨ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਹ ਤਿਆਗੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਥੋੜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ? ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਕੜ। ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੂਤਕਾਲ, ਭਵਿੱਖਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੁੱਥੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਇਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦਇਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ। ਦਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਰਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਤਰਸ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਆਸ ਪੜੋਸ ਤੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਦਇਆ ਉਹ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਮੋਹ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दया, महात्मा बुद्ध अपनी कथा सुनाते ने। महात्मा बुद्ध वो अपनी कथा सुनाते हैं और कथा में ये कहते हैं अपने लोगों को कि मैं जंगल में हाथी था। क्या था? हाथी। और मैं जंगल में था, घना जंगल था, मैं जंगली हाथी था। जंगल में आग लगी, सब जानवर जंगल से बाहर निकले, सब जंगल से भागे बाहर की तरफ। वो कहते मैं भी भज्जे, वो भी भागे। हाथी भी भागा जंगल से बाहर अपनी जान बचाने के लिए। रास्ते में हाथी थक गया। कहते मैंने थक गया और मैंने विश्राम करने की सोची कि मैं विश्राम करूं। जब भी जानवर विश्राम करते हैं, बहुत सारे जानवर, उनका एक पैर ऊपर की तरफ उठ जाता है। आपने कभी घोड़ा देखा हो, कभी भी कोई जानवर देखा हो, वो एक पैर अपना ऊपर की तरफ ऐसे रख लेता है ताकि उनको आराम मिल जाए। हाथी ने भी अपना एक पांव ऊपर उठाया क्योंकि वह थक गया था भागते भागते। आग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। एक पांव ऊपर की तरफ रख लिया, दूसरे पांव के साथ ऐसे जोड़ लिया और उसी के नीचे, पांव के नीचे ही हाथी के खरगोश आकर बैठ गया। खरगोश भी भाग रहे थे जान बचाने के लिए, जंगली खरगोश थे। वो खरगोश आके हाथी के पांव के नीचे बिल्कुल बैठ गया और वहां पर खरगोश को ठंडक लगी, छांव थी, ठंडक लगी। उसने वहां पर भागते भागते सांस लेकर शांति से बैठ गया और वहीं पर उसको बैठे बैठे नींद आ गई खरगोश को, और वहां से वो हिला ही नहीं। हाथी के पांव के नीचे था। अब ये महात्मा बुद्ध सुना रहे हैं अपने लोगों को, अपने लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसा हुआ मेरे साथ। पिछले जन्म की बात है, पिछले जन्म की कथा है। मैं हाथी था और मेरे पांव के नीचे एक खरगोश आके बैठ गया और वो खरगोश हिला नहीं, तो मैं भी नहीं हिला। मैं भी वहां का वहां खड़ा रहा कि वो हिलेगा तो मैं हिलूंगा। आग इतनी तेजी से बढ़ी कि वो मुझे जलाकर राख कर दिया, पर मैं वैसे का वैसे ही खड़ा रहा, क्योंकि अपने शरीर को आग लगाने का मुझे कष्ट बहुत महसूस हुआ कि मेरे शरीर को आग भी लग गई। पर मुझे अंदर दया फूट आई कि मैंने पांव हिलाया तो वो जानवर मर जाएगा, इसलिए मैंने अपना पांव वहीं का वहीं रखा। उस जानवर को नहीं मरने दिया और खुद को मार लिया। ये महात्मा बुद्ध अपनी कहानी सुना रहे हैं अपने बौद्ध भिक्षुओं को। और बौद्ध भिक्षुओं ने कहा फिर क्या हुआ? कहते फिर क्या होना था? जब मुझे दया आई, हाथी के अंदर दया प्रकट हो गई और मैं मर गया खरगोश को बचाते हुए, मैंने अपने प्राण दे दिए, तो भगवान को मुझ पर दया आई और उसने मुझे बुद्ध बनाकर धरती पर भेजा। गौतम बुद्ध बनकर मैं आया, दया से ही बस।
हाथी से इंसान बन गए। समझ आ गई? दया, जहां दया वहां धर्म। धर्म मतलब भगवान, धर्म अर्थात भगवान। जहां पर दया फूटती है, आपको दया सीखनी है कि मेरी कठोरता खत्म हो और मैं दया का सागर जो भगवान है, क्योंकि उसमें तो बहुत दया है, मुझे थोड़ी सी दया उससे उधार लेनी है, बस इतनी सी, ताकि मैं अपने जीवन को एक देवता बनाकर जी सकूं। अब देवता क्यों है? क्योंकि उसमें भी दया है। वो सबको वरदान देता है। कोई भी उसका पाठ पूजा करे, कोई भी उसका आह्वान करे, कोई भी उसको बुलाए, वो प्रकट होता है। वो कहता है पुत्र क्या चाहिए तुम्हें, वो देता है। आप लोगों ने ज्योतिषों के पास भी जाते हो सब लोग, मुझे बड़े लोग मिलते हैं, हमारा ये ग्रह खराब है, हमारा वो ग्रह खराब है, हमारा शनि खराब है, हमारा मंगल खराब है। तो आपको वो ज्योतिष कहता है कि तू थोड़ा सा पाठ कर, शनि देवता का ध्यान कर, शनि देवता खुश हो जाएगा। ऐसे ही कहता है ना वो। तो आप क्या करते हो? देवता को प्रसन्न करते हो, उसको तेल चढ़ाते हो या कुछ चढ़ाते हो, कुछ भी करते हो तो ठीक है। आप सोचते हो भाई वो खुश हो गया, मतलब कि आपके तेल से एक देवता खुश हो गया। इसका मतलब समझते हो आप लोग? इसका अर्थ ये नहीं है कि तेल से खुश हो गया, इसका अर्थ ये है आपकी थोड़ी सी सेवा से कोई देवता प्रसन्न हो गया। सेवा से, अगर वही सेवा का भाव आप संगत में लेकर आओ और किसी को उसी भाव से इन व्यक्तियों को जल छिका दो, पानी पिलाओ, इनके लिए सोचो यार मैं घर से मैं वो ले आऊं, लड्डू प्रसाद ले आऊं, मैं घर से यार मैं फ्रूट ले आऊं, मैं संगत में जा रहा हूं, कुछ उनके लिए खाने पीने के लिए साधन ले लूं, कुछ जुटा लूं, संगत में बांटूंगा। यही सेवा भाव अपनी संगत में लेकर आइए। यहां तो बहुत देवता बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने देवता खुश हो जाएंगे आपसे, और जीते जागते देवता हैं ये लोग। पर हे सखावे बुद्धि दवे कौन थोन, ये हर एक नू नहीं आवेगी, क्योंकि इतनी अकल कौन देगा आपको? आपको जितनी किसी ने अकल दे दी, आप उतना ही खर्चा करते हो अकल से। बस उतना ही आपको पता है कि शनि देवता को मनाना है, तो उससे आप खुश हो जाएगा, तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। पर किसी ने जे तैनूं अकल दे देती हुंदी कि शनि ते एक है, इत्थे ते सारे वखो वख देवते ने, संगत विच सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी है। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया। जिसने संगत कर ली और संगत में आकर सेवा कर ली, वो तो भगवान को जीत गया, भगवान प्रसन्न हो गया उससे। मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं आपका दिल जीत रहा हूं, मैं भी तो सेवा ही कर रहा हूं। मैं आपके दिल की सेवा कर रहा हूं, आपके दिल और दिमाग को ठीक कर रहा हूं। टुटियां गंडनहार स्वामी, जो आप टूट चुके हो अपने हृदय से, भगवान से, मन से, विचारों से, तो उसको जोड़ता कौन है? उसको जोड़ने का काम मैं कर रहा हूं। रब वाला काम संत महापुरुष करते ने, जिहड़ा रब उन्होंने काम दे के भेजदा, जाओ मेरे बंदियां नू नेक बंदे बनाओ। तुम दसो मैनू किन्ने क नेक बंदे बनाते? नहीं बनाए। हमने कितने बना दिए? किसी को नहीं। पहली गल, किसी पास टाइम नहीं है। वो कहता यार मैं नहीं तेरे को समझा सकता, इतना सिर खपाई करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको समझ अपने को नहीं है। जब तक समझ आती है व्यक्ति को, तब तक प्राण निकल जाते हैं, मृत्यु आ जाती है। सद्दनहारा सिमरिए नानक से दे आवन। सद्दनहारे को सिमरना है। सद्दनहारा मतलब जिसने कल्ले आवे नानका सद्दे उठे जाए, जो सददा है। आपने सद्दनहारा सिमरिए, आपने सद्दनहारा को याद करना था कि हम परमात्मा जो हमारे को बुलाने वाला, सद्दन वाला जो ऊपर बैठा है, वो हमें बुला ले, हम ही उसको आवाज मार लेते हैं, हे सद्दनहारा तू ही आ जा मेरी जिंदगी दे विच, मैं तेरे को तो एक दिन आना ही है, तब क्यों ना तू मेरी जिंदगी च आ जा।
तू ही मेरी बांह फड़ ले। तो आप लोग पॉजिटिव रहते हो। ज्ञान से ही व्यक्ति खुश रहता है, ज्ञान से ही व्यक्ति ताकतवर है, ज्ञान से ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां हैं, जागृत होती हैं। शरीर में ऊर्जा, शरीर में ताकत, ये ज्ञान से ही है। आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान अगर मिल जाए, डोज मिल जाए समय समय पर, शरीर तंदुरुस्त, आत्मा तंदुरुस्त, मन भी तंदुरुस्त। जब इंसान भटकता कब है? जब उसके पास गलत ज्ञान पहुंच जाता है। अब गलत ज्ञान भी होता है, सही ज्ञान भी है और गलत ज्ञान भी है। किसी गलत व्यक्ति के पास बैठोगे, वो आपको गलत बना देगा। छाड़े यार की करदा तू, किहड़े चक्करां च फसिया बैठा, फिर तेरा दिल ही नहीं करना। क्यों क्यों कहां जा रहा है, क्या चक्रों में पड़ा है, क्या तू बाबा बाबा, क्या गुरु गुरु करता रहता है। तो ऐसे लोग भी बहुत दुनिया में बैठे, क्योंकि वो खुद नहीं करना चाहते गुरु गुरु, तो आपको करते हुए देखना भी नहीं चाहते गुरु गुरु। तो आपको वो अपनी सोच देते हैं, हम नहीं करना चाहते, हमें नहीं अच्छा लगता गुरु, तू भी मत कर गुरु गुरु गुरु। तो आप उनकी सोच से थोड़ी चलोगे। वो अपने शब्दों को, अपनी सोच को आपके दिमाग में डाल देते हैं, तो आप भी वैसे बन जाते हो। आपके दिमाग में कोई दूसरा क्यों भरे गंदगी? हाउ कम? वो क्यों चलाए आपको? आपसे ज्यादा सियाना कोई नहीं है। पर जब आप किसी को मौका देते हो, तभी अगला मौका फायदा उठाता है। जब आप उसके सामने रोते हो, ओ मेरा घर गुजारा नहीं, मेरा काम नहीं, तुसी ਉਹਨੂੰ जानबूझ के अपनी वीक चीज़ां दसदे हो, जानबूझ के उसको अपनी कमजोरियां बताते हो। अगला फिर उस कमजोरियों के फायदे से आपका दिमाग खराब करता है, उसको कहने का मौका मिलता है। आप तो किसी से शेयर करना चाहते हो, आपको तो प्रॉब्लम है, आप किसी से भी अपनी दोस्ती लगाकर आप किसी से भी कुछ भी बातें करने लगते हो। यही तो प्रॉब्लम है, इसी से तो बचना है। ज्ञान किसे कहते हैं कि हर एक से अपने दिल की बात नहीं किया करते। कुछ लोग होते हैं जिनसे दिल की बात किया करते हैं। उनमें से एक गुरु होता है, एक माता पिता होते हैं, एक पत्नी होती है, और एक अच्छे मित्र होते हैं, जो 2-4 मित्र अच्छे अच्छे वाले, जो आपको अच्छी सलाह देंगे, बुरी सलाह नहीं देंगे। वो मित्र ढूंढने पड़ते हैं। आप उठ के जो मर्जी मिल गया, 2-3 बातें हंस खेल लिया, हा 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 हुआ ही हुई, बस आप भी अपना दिल का रोना रो बैठते हो। अगला फायदा उठाता है, आपको अपने पीछे लगा लेता है। तो आपकी बुद्धि को दूसरे चला रहे हैं, आपकी बुद्धि खुद नहीं चल रही। यहीं आप लोग मार खा रहे हो। मैं हूं ना, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कमजोर। अभी कल परसों भी मैं संगत से मिल रहा था, 2-3 दिन से लगातार, रोज ही मिलता हूं। बहुत कमजोर कमजोर आत्माएं आती हैं, बड़ी 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 आत्माएं, बुरी बुरी आत्माएं, जो कि पूरे संसार में अपने आप को, हम लोग गंदगी से भरे रहते हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं ऐसे, बहुत कमजोर दल। तो मैं उनके साथ कमजोर थोड़ी बन जाता हूं। मैं तो उनकी बात सुनता हूं, हाँ 10 और उनको ताकतवर बना के भेजता हूं। जब मेरे से बाहर निकलते हैं तो वो सोचते हैं हम उनके हाथ में कोई एक अलग से शक्ति पकड़ ली उन्होंने, और कहते हैं हम बस शक्तिशाली बन गए। और जब आप दूसरे किसी महापुरुष के पास जाते हो, या किसी संत के पास, या कहीं भी जाते होंगे, कोई भी, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं कभी कहीं गया नहीं, पर मैंने सुना जरूर है कि कहीं पर भी आप लोग जाते हो, वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। मैं आपकी कमजोरियों का फायदा नहीं उठाता, क्योंकि मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, ना पैसा चाहिए, ना मुझे आपसे कुछ और चाहिए। 32 साल की सेवा है, 32 रुपए नहीं मांगे होंगे मैंने आपसे। तो मेरे जैसा व्यक्ति ढूंढ के लाइए, मिल जाए तो। फिर भी कदर नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को धक्के खाने हैं, आपके किस्मत में लिखा हुआ है धक्के खाने हैं। अच्छे लोग जो हैं उनको संभाल के आप रख नहीं सकते।
अच्छे माता पिता भी आपको अगर मिल जाएंगे आसानी से तो उनको भी धक्के खाने पड़ेंगे आपसे। किस्मत में भाई लिखा हुआ है। अब ये किस्मत है, अब कैसे बदलेंगे किस्मत को? मैंने सबके बारे में सोचा ही है, पर मैं आपकी तरफ गौर से देखता हूं। जैसे आप मुझे ऑब्जर्व करते हो ना, मेरी एक एक चीज, एक्टिविटी, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मैं आपको भी देख रहा होता हूं कि आप क्या कर रहे हो। आप मत सोचा करो कि मैं आपको छोड़ देता हूं। मैं भी आपके ऊपर अपनी आंखें टिका के बैठा रहता हूं कि आप क्या सोच रहे हो और क्या कर रहे हो भगवान के लिए, गुरु के लिए। फिर आप में योग्यता नहीं दिखती मुझे। मैं कहता हूं बहुत समय लगेगा इनको सुधरने में, बहुत टाइम लगेगा बदलने में। और मैं धैर्य में बैठा हूं उस वक्त के इंतजार में कि शायद वो मौका आएगा जिस दिन आप में संत स्वरूप, साधु रूप प्रकट होगा, भगवान का वो रूप प्रकट होगा जो मैं देखना चाहता हूं आप में। आप मेरे पास आके केवल मेरे ऊपर आंखें नहीं रखते, याद रखिएगा, मैं भी ऑब्जर्व करता हूं आपको। हम बताते नहीं, बस मेरा काम भी नहीं है। मेरा काम तो पर्दे डालना है, आपकी बुराइयां देखकर भी पर्दे डालने हैं मुझे सब मालूम है हर एक का, कौन क्या करता है कौन नहीं करता, पर पर्दे डालता हूं। अपने बच्चों के पर्दे थोड़ी खोलता है कोई माँ बाप। यही प्रेम है मेरा, देखकर भी अनदेखा करना कि चलो आज नहीं और कल। अब कबीर साहब कहते हैं दया, जहां दया तहां धर्म। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की एक साखी सुनाता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी को भगवान का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में दया को आगे रखा, कठोरता को नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के जब दो लाल साहबजादे जंग में शहीद हुए, उनको पता था कि ये वापस नहीं आएंगे दो साहबजादे, पर 40 मुक्ते भी साथ में हैं, वो भी वापस नहीं आएंगे। उसी रात की बात है, महाराज जी जब चमकौर की गढ़ी से निकलते हैं, रात का समय है, बाहर बहुत अंधेरी रात थी, ठंड का समय था, बारिश का माहौल था, बदल गरज रहे थे। चमकौर की गली से जब निकले तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के साथ भाई दया सिंह थे। 5 प्यारे में से भाई दया सिंह एक प्यारा है। जब महाराज जी निकले तो उनके घोड़े को रास्ते में, जब वो वहां से जहां पर जंग हुई थी, तो महाराज जी का घोड़ा वहीं से निकल रहा है, गुजर रहा है रात को, तो वो घोड़े ने अपना मुंह झुका लिया, सिर नीचे कर लिया और कुछ चीजें चाटने लगा। महाराज जी ने देखा कि मेरा घोड़ा इदां कर नहीं सकता, ये चट रहा है कोई चीज, और रात का वेला है, नजर कुछ नहीं आ रहा, उतों बदल गरजिया और ऊपर से जड़ा बिजली सी, बिजली एकदम चमकी, तो थल्ले देखिया लाश साहबजादे दी, मृत शरीर, शहीद होए साहबजादे, उन्होंने मृत शरीर थले है और वो पैर चट रहा घोड़ा उन्हों का। महाराज जी
ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ, ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। जब ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ तो दया सिंह, भाई दया सिंह कहन लगे पातशाह रुको, मैं ना साहिबजादा जी के उत्ते चादर पा देवां। कमर कस, हम कमर कस होता ना बांधा हुआ, वो कमर कस खोल के भाई दया सिंह कह लगे मैं चादर नूं, क्योंकि बड़ा वड्डा कमर कस होता है, जिहड़ा चमड़ा हुंदा थल्ले चमड़े दे उत्ते कमर कस पाया हुंदा ताकि कोई चीज़ कोई मारे तो ढिड दे विच ना लगे। तो कमर कस से कमर भी सीधी रहती है। पुराने ज़माने में हर आदमी कमर कस बांध लिया करते थे ताकि कमर सीधी रहे। ये जो बेल्ट है ना, जो महाराज जी ने बेल्ट दी है, ये कमर कस ही है। यहाँ से आप सोचिए थोड़ा सा, इससे बंदे को ताकत बनी रहती है। जब बंदा कमर में कस के लगाता है, इसको बेल्ट का रूप जो है कमर कस है, एकदम सीधी रहती है। और जिसकी कमर सीधी रहती है वो थकता नहीं है आसानी से, याद रखिएगा। ये महाराज जी ने बहुत खूबी से ये बेल्ट लगाई है। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से बांधना चाहिए, और ध्यान वाली बेल्ट एक इसका सिस्टम अलग होना चाहिए। ये कमर कस का बहुत फायदा है। और बड़ी हो थोड़ी सी बेल्ट तो सहारा बना रहता है पूरी की पूरी। ये छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी पूरी की पूरी बेल्ट, ताकि कमर को, खड़े भी रहेंगे ना जब आप जब ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो आपकी कमर दुखती है। आप ध्यान रखना, आपकी कमर पीछे से दुखनी शुरू हो जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड, जब आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं। तो जब आपकी कमर कस लगा होगा, बड़ी सी होगी, आपके ऊपर बेल्ट लगी होगी पूरी की पूरी, तो आपका दुखेगा नहीं, क्योंकि आपको सहारा मिला हुआ है। कमर को सहारा मिल जाएगा तो आप खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, काम करते रहेंगे, थकेंगे नहीं। घोड़े पर तो ज़्यादा बंदा थकता था। वो कमर कस खोली भाई दया सिंह ने, ते कोल खोल के कहते मैं साहिबजादियां दे उत्ते, महाराज जी पातशाह रुको, मैं साहिबजादियां ते पा देवां। महाराज जी ने बांह फड़ी दया सिंह जी दी, कहते ने दया सिंह तेरे को किनियां चादरां ने? पातशाह एक है, मैं दो बना लैनियां ने। ना, ये जिन्ने भी बच्चे होर भी मेरियां रूहां पईयां ने, ये भी ते मेरे बच्चे ने सारे। ते जे चादरां पुत्तर ज़्यादा सारियां हैगियां ने फिर सारियां ते पा दे, ते जे ते को थोड़ियां चादरां ते फिर मेरे न्याणियां ते ना पावीं। ये दो न्याणे इकल्ले मेरे नहीं, ये सारी फौज ही मेरी पई है लम्बी। फर्का ना करी। ते महाराज ने वेखिया भी नहीं अपने न्याणियां वल, बच्चियां वल। छोटे छोटे बच्चे ने, शहीद पे ने, बच्चे नूं वेख के प्यो दा दिल कंब जांदा। 40-40 दिन रोंदे ने न्याणियां नूं याद करके माँ बाप अजकल दे। 50-50 दिन रोई जाणगे, हाय बच्चे साडे मर गए, हाय बच्चे साडे मर गए। महाराज कहंदे एक मरियो, दो मरियो, चार मरे तो क्या पियो, मेरे जीवित कई हज़ार। ताही तो उन्होंने फिर रुतबा दिता कि तू पातशाह, तू जे इदां दीयां गल्लां करदा फिर तू रब ही हो सकदा, धरती ते रहण वाला इंसान ते इदां नहीं कर सकदा। ते दया, इन्हूं कहंदे दया, फरका परस्ती नहीं की। भाई दया सिंह को कहते हैं कि फरका परस्ती नहीं करनी। दया, दया है तो सारियां दे वल एक बराबर की दया होनी चाहिए। मेरे पुत्रां दे प्रति दया वखरी होवे, दूजियां दे प्रति चादरां ना पाईयां गईयां, फिर कोई फायदा नहीं, इसदा कोई फायदा नहीं। आप लोगों को ये दया के बारे में ही सीखना है।